Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to discuss the strategy for the essay preparation. तो आज हम essay preparation strategy discuss करने वाले हैं and this strategy we are going to discuss the syllabus of essay, how you have to prepare the essay for your mains examination. Mains में separately एक topic होता है ना essay का, तो आप वो कैसे prepare करोगे और also how to practice the essay for the essay paper, how to make sure that we are strong for the essay paper. All of this we are going to discuss. What is the strategy that you should adopt for catering this essay paper, to study the essay paper. किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करनी है, डालनी है अपने प्रिपरेशन में, ताकि आप ऐसे का पेपर अच्छे से टैकल कर पाओ. उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. दिस अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू दी मैग्ना कार्टा सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी, विच इज अ सीरीज ऑफ फ्री क्लासेस विच इज स्टार्टेड बाय आतिश माथुर सर. तो आतिश माथुर सर ने एक फ्री क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, which is the Magna Carta series, and this is specially designed for the UPSC 2020-21 aspirants, wherein he will be providing 13 lectures for free, and it will be covering the most important topics of Indian polity from the perspective of both prelims and mains. तो प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर किए हैं आतिश माथुर सर ने. सो द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन वॉच दीज 13 लेसन्स एंड यू कैन स्ट्रेंथन अप योर इंडियन पॉलिटी. आप अपने इंडियन पॉलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इन फ्री लेक्चर्स को देखकर. ठीक है, यू विल बी प्रोवाइडेड द नोट्स ऑल्सो. तो लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप and click on the link given below in the description box and you will get to the lessons. These are free of cost. ये जो lessons हैं आतिश माथुर सर के free of cost हैं. ठीक है, so let's start the class. So this class is going to cater the 2020 aspirants also, 21 also, 22, even 23 aspirants. So we are going to discuss the syllabus in this strategy. I hope you all are attentive in the class and you can also make running notes in the class itself. आप class में running notes भी बना सकते हो अगर आपको लगता है कुछ points important है. ठीक है, सो क्लास शुरू करें. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप सभी रेडी हो. करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एसे. ठीक है, नाउ एसे मींस, एसे का मतलब क्या होता है? एसे का मतलब होता है कि आपको अपने फिलॉसफी, अपने माइंडसेट, अपने परसेप्शन को पेपर पे व्यक्त करना है. व्हाट इज एसे? यू हैव टू एक्सप्रेस योर फिलॉसफी, योर पर्सपेक्टिव, योर माइंडसेट ऑन पेपर. ठीक है, सो दिस इज ऐसे, उसको हम ऐसे बोलते हैं. एंड ऐसे बेसिकली रिफ्लेक्ट्स योर वे ऑफ थिंकिंग. ऐसे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो किसी टॉपिक के ऊपर. Each and every individual has different mindset when it comes to different topics in the society. For example, on women empowerment, my mindset will be a little different. Your mindset can be different from me. ठीक है, आपका mindset मुझसे थोड़ा change हो सकता है, मेरा mindset आपसे थोड़ा अलग हो सकता है. When we talk about reservation, reservation के ऊपर लोगों के different perspectives होते हैं. On reservation topic, different people have different perspective. So these perspectives are tested in the essay paper. यही perspectives जो होते हैं ना, इसको essay paper में टेस्ट किया जाता है. ठीक है, on the basis of which it is known to the examiner if you are suitable for the position for which you are giving this exam. तो उसी के बेसिस पे देखा जाएगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए जो क्वालिटीज चाहिए उस हिसाब से आपका माइंडसेट मैच करता है या नहीं. ठीक है, सो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay on a specific topic. Now students are very scared of essay. Why you are scared? If you read the current affairs or any issue in the in your surroundings properly with analytical approach. Analytical means both pros and cons you are studying. आप उसका अच्छा पार्ट भी पढ़ रहे हो और आप उसका बुरा पार्ट भी देख रहे हो. Every coin has two sides. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. Agreed? Okay. Every coin has two sides. So if you have that analytical ability that you can identify both the good and the bad of situation, that will be reflected in the essay. वो आपको essay में reflect करना है. Essay should be neutral. आप जो भी essay लिखोगे वो neutral होना चाहिए. For example, reservation topic पे essay आता है और आपके perspective reservation को लेकर थोड़े से नेगेटिव है, तो आपको कोशिश करनी है कि उसके अंदर गुड पार्ट क्या है उसको भी आइडेंटिफाई करो. बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हेन यू विल बी एडमिनिस्ट्रिंग अ डिस्ट्रिक्ट और अ पर्टिकुलर प्रोविंस, व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी हैंडलिंग पीपल, यू विल बी बेसिकली मैनेजिंग पीपल, यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसीज.
एट दैट पॉइंट यू शुड बी न्यूट्रल, यू शुड नॉट टेक साइड्स। आप किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट का साइड नहीं लोगे, आप बैलेंस्ड अप्रोच रखोगे। यू विल कीप अ बैलेंस्ड अप्रोच इन योर माइंड व्हेन यू विल एडमिनिस्टर अ पर्टिकुलर एरिया। यू विल नॉट टेक साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर caste. You will not favor somebody. You will be balanced in your approach because you will be serving the nation as a whole, and this nation is a mixture of everything, every culture, every community, society, different traditions, different religions exist in this nation. Okay, different languages exist in this nation. So when you will be handling people, you will be handling everybody with a balanced approach. Same approach will be tested in the essay. वो same approach जो होगा वो essay में test किया जाएगा. So you will be given choices. You will be giving 4-3 essays. 4 या 3 essays आपको दिए जाएंगे, ठीक है? And amongst those 4-3 essays, you have to identify the topic that you want to write essay on. आपको 2 topics identify करने होंगे जिसके ऊपर आप essay लिखना चाहोगे. Now most of the top rankers they have scored 55% in this paper. कुछ बच्चों ने तो 60% भी स्कोर किया है जिसको हाईएस्ट माना जाता है. This score, if you achieve 60 or 55% in essay paper, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, अगर आपके 60% नंबर आ जाते हैं ना, मतलब आपकी टॉप 10 में रैंक जो है वो पक्की हो जाती है. Essay is a paper which can make you. ऐसे एक ऐसा पेपर है जो हमें तोड़ भी सकता है, जो बना भी सकता है. इसलिए ऐसे पे थोड़ा फोकस करना जरूरी है, बिकॉज ऐसे इज नॉट सिलेबस सेंट्रिक. ऐसे आपका सिलेबस सेंट्रिक पेपर नहीं है. हियर योर माइंडसेट, योर थिंकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग विल बी टेस्टेड. आप कैसा सोचते हो ना, आपकी सोच कैसी है वो टेस्ट किया जाएगा ऐसे में. इट इज, यू कैन से, गोइंग टू चेक योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी इंटरव्यू से पहले ही चेक हो जाएगी. 2 पेपर्स होते हैं जिसमें पर्सनालिटी चेक हो जाती है इंटरव्यू से पहले. वो है एथिक्स का पेपर, जीएस पेपर 4 एंड एसे. दीज आर द 2 पेपर्स वेयर द पर्सनालिटी इज टेस्टेड ऑटोमेटिकली बिफोर दे टेक इंटरव्यू. दैट इज एथिक्स एंड एसे पेपर. So essay is the first step wherein you have to keep your mindset, your perspective, your thinking, your opinions in front of the examiner. And over here your target should be 55 to 60% marks. How that can be scored, कैसे score किया जा सकता है? पहली बात तो confusion निकाल दो. First of all, just take away your confusion. Take away that confusion, wrap it up and burn it. Confuse नहीं होना. Essay is a very direct paper. ठीक है? ऐसे बहुत direct paper होता है. तो first of all, understand that in essay they can give you any topic. वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं from the current affairs. ठीक है? तो करंट अफेयर्स में से आपको कोई भी टॉपिक सामने आपके रख दिया जाएगा. ठीक है? इन द करंट अफेयर्स वी हैव टॉपिक्स रिलेटेड टू एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है ना अभी, एनईपी 2020 हैज बीन लॉन्च्ड, सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन ऐसे. आपको एजुकेशन का टॉपिक पूछ लेंगे. वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अमेंडमेंट इन एजुकेशन, रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन, कोई भी टॉपिक रख देंगे. और दे कैन राइट एजुकेशन इज द की टू डिसिप्लिन. राइट ऐसे ऑन दिस टॉपिक कि एजुकेशन से डिसिप्लिन आता है. बहुत इजीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो. और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? जब आप पढ़ते वक्त अपने दिमाग को चारों ओर दौड़ाते हो. ठीक है? चारों ओर मतलब उस टॉपिक के ऊपर 360 डिग्री एनालिसिस करते हो. सो यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे दैट यू आर डेली रीडिंग द करंट अफेयर्स, especially the editorial section of the newspaper. Either it is Hindu newspaper or Indian Express. या आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो आपकी चॉइस है. बट आप एडिटोरियल सेक्शन मिस नहीं करोगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे पेपर. ओके, सो आइदर ऑफ द 2 न्यूज़पेपर्स, कोई एक पढ़ना है आपको, दोनों नहीं पढ़ने. डू नॉट गो फॉर बोथ द न्यूज़पेपर, स्टडी ओनली वन. ओके, so you can take up any newspaper, any one newspaper out of the 2, and editorial section you have to study, and make sure daily you are making short notes from editorials, and those editorials which are important from the perspective of your syllabus. ये नहीं कि कोई भी politics के ऊपर editorial आया आपने पढ़ लिया. ठीक है? वही editorial जो syllabus से match करता है, the editorial which matches with the syllabus, that you have to study. Okay, now moving forward, when you study the editorials or newspaper in a particular day, before you go to sleep, सोने से पहले practice one essay. ठीक है? How you can practice essay? अब आप कैसे practice कर सकते हो? Where you will find the questions matching to the current affairs that you have read? You can frame your own topics. कैसे? How? When you read an editorial on, let's say, free speech and hate speech. आज एक एडिटोरियल आया है फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच के डिफरेंस को दर्शाता है. ठीक है?
So in today's newspaper, in the Hindu newspaper, there's one editorial talking about free speech and hate speech. There is a channel, Sudarshan channel, which petitioners have said is spreading communalism. ऐसे एक पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सुदर्शन चैनल है जो कि कम्युनलिज्म को स्प्रेड कर रहा है यूपीएससी जिहाद करके कोई वीडियो बनाकर. ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, अब उस केस में क्या कर सकते हो, आपने एडिटोरियल पढ़ा, यू रेड द एडिटोरियल, यू स्टडीड इट वेरी केयरफुली. ओके, नाउ बिफोर यू गो टू बेड, मेक श्योर दैट you express your opinions on a piece of paper on what is free speech and what is hate speech, what is the difference between the two. Okay, and what are section 19 and section 20 in this context. Editorial में ये दोनों section mentioned है. In the editorial both these sections are mentioned. So go through the editorial. In the morning, let's say you have studied the newspaper, or at night you have studied the newspaper. Now before you hit the bed, सोने से पहले आप क्या करेंगे, आप फ्री स्पीच हेट स्पीच के ऊपर जो आपने एडिटोरियल पढ़ा उसके बेसिस पे अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करोगे. ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू विल एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन व्हाट इज योर व्यू ऑन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, एंड हाउ फार अ पर्सन कैन गो व्हेन ही एक्सप्रेसेस हेट स्पीच, एंड हाउ शुड इट बी डेल्ट विद, कैसे इससे डील किया जाए. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, इस तरीके से प्रैक्टिस डेवलप करनी है. एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ डूइंग दिस, कम से कम आपको ये जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो, किसी एक एडिटोरियल पे अपने व्यूज एक्सप्रेस करो. वॉट एवर एडिटोरियल्स यू स्टडी इन अ डे, बिफोर यू हिट द बेड, सोने से पहले जस्ट एक्सप्रेस योर व्यूज न्यूट्रल. दे शुड बी न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स मेंशन द प्रोज, दैट इज द पॉजिटिव्स, द नेगेटिव्स एंड योर सोल्यूशन टू दैट. ओके, इसको हम न्यूट्रल अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच बोलते हैं. और सोने से पहले आपको हर एडिटोरियल पर, ठीक है, एक अपना किसी भी एक एडिटोरियल पे, एनी वन एडिटोरियल यू कैन पिक अप एंड मेंशन, राइट योर ओपिनियंस और राइट योर व्यूज. ठीक है, अपने ओपिनियंस या अपने व्यूज आपको लिखने हैं. एंड मेक श्योर दोज ओपिनियंस आर नॉट मोर देन 3 पेजेस. ऐसा ना हो कि आप ओपिनियन लिखते लिखते भावनाओं में बह गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, 3 पेजेस से ज्यादा नहीं. धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, 1 पेज भी हो सकता है, आधा पेज भी हो सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस करो. ठीक है, नाउ 1 week you have to continue this practice. उसके बाद you can refer to the websites like Insights. ठीक है, Insights वेबसाइट है एक, and there is another website like Clear IS. ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है. There is another for especially for the essays, IS Baba और GS Core. ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है. ये 4 वेबसाइट्स काफी अच्छी हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऐसे के पर्सपेक्टिव से, फ्री एसेज के पर्सपेक्टिव से ये वेबसाइट्स अच्छी हैं. So either one of these websites you have to choose. सारी नहीं चूज करनी है. You have to consolidate your resources. You do not have to spread yourself amongst various websites. No. Pick any one website. कोई भी एक वेबसाइट पिक करो. I would refer Insights, okay? Because वहां पर आप अपना ऐसे पोस्ट भी कर सकते हो, वो फ्री में चेक भी करते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं. ओके, फ्री डिस्कशंस ऑल्सो टेक प्लेस. आइदर IS बाबा और Insights आप पिकअप कर सकते हो, कोई भी एक. एंड दे पोस्ट फ्री ऐसे क्वेश्चंस डेली. वहां पर ये फ्री ऐसे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं. नाउ प्लीज डोंट स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू दीज वेबसाइट्स. फर्स्ट प्रैक्टिस राइटिंग योर ओपिनियंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर फॉर 1 वीक. कम से कम 7 दिन आप प्रैक्टिस करो कि अपने ओपिनियंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे ओपिनियंस को व्यक्त करते हैं एडिटोरियल्स पे. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है जो मैंने आपको बताया. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड देन यू कैन रेफर टू दीज वेबसाइट्स. डेली 1 ऐसे यू हैव टू प्रैक्टिस. If you cannot practice daily, if you are a working professional or a college student, आप practice नहीं कर पा रहे, so every alternative day or after every 3 days, हर 3 दिन के बाद, after every 3 days practice 2 essays or 1 essays. 2 या 1 ऐसे practice करो ही करो. ठीक है, and if there is some topic of essay on Insights or IS Baba or any other website that is confusing, थोड़ा सा आपको confusing लग रहा है कि मैं आधा पेज लिखने के बाद अटक गया, after writing half a page on that topic you are stuck. Then what you can do, you can initially take the help of Google to pre-search about the essay. आप ऐसे का टॉपिक आपको मिलता है फ्री में, ठीक है, इन वेबसाइट से. तो आप कम से कम 5 या 10 मिनट लगाकर या 15 मिनट लगाकर इनिशियली पहले 20 या 21 दिन तक आप गूगल सर्च से हेल्प ले सकते हो. एंड आफ्टर डूइंग योर सर्च, आफ्टर एनालाइजिंग द फैक्ट्स, switch off the devices and keep your notes aside and then start writing. Cheat नहीं करना. Do not cheat that you have opened up Google, you are looking at the facts and you are writing it down. No. ठीक है, you are writing the essay down. No. First do your search, अपनी search कर लो, analyze yourself, understand the topic, learn it, then close the books, close the devices, keep it aside, then take a piece of paper and start writing essay.
दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, चाहे ऐसे लिखो चाहे आंसर्स लिखो। बच्चे क्या करते हैं, साइड बाय साइड लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं और जो जो फैक्ट्स आते हैं आंसर बनाते चले जाते हैं। दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी। एंड इन द मेन एग्जाम हॉल यू विल नॉट बी गिवन गूगल, ठीक है। आपको वहां पर गूगल हेल्प करने नहीं आएगा, गूगल विल नॉट कम टू हेल्प यू इन द मेन एग्जाम सेंटर, ओके। सो दैट इज वाई फर्स्ट डू योर प्री रिसर्च, learn it, analyze it, revise it, only then after closing all the books and devices start writing the essay। इतनी बात समझ आती है? तो आपको ना 1000 से 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, 3-4 पेजेस आपको लगेंगे, ठीक है। 1000 to 1200 पेज वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना होता है। एंड नाउ यू स्टूडेंट्स वंडर, मैम कैन वी राइट दीज मेनी वर्ड्स? यस, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, जो आप लिखने लगोगे ना, तो क्या होगा कि अपने आप फ्लो बनता जाएगा, ठीक है। हम बाय नेचर ह्यूमंस जो होते हैं वो फिलोसफिकल होते हैं। बाय नेचर वी ऑल ह्यूमंस, स्पेशली इंडियंस, आर वेरी फिलोसफिकल, ओके। सो वंस यू स्टार्ट राइटिंग, your flow will be maintained, okay, it will continue, but that will happen only when you practice। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस होगी। डोंट थिंक दैट विदाउट प्रैक्टिसिंग डायरेक्टली इन द डे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू विल राइट 1000 वर्ड्स। नो, इट विल नेवर हैपन। एग्जाम वाले दिन अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए हो ना, तो 4 वर्ड्स लिखने के बाद सोचने लगोगे आगे क्या लिखें। बट अगर प्रैक्टिस मेंटेन्ड है, आपको आपके ओपिनियंस लिखने आते हैं, तब जाकर बात बनेगी। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वॉइस देयर ओपिनियन ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। कितने ही बच्चे हैं जो कि अपने ओपिनियंस बड़े स्ट्रांगली इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे डालते हैं, बट जब उनसे बोलो लिखना शुरू करो तो कुछ नहीं आता, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज, वी नीड टू स्टॉप orally voicing our opinions right now in the exam preparation journey and we need to start writing। हमें लिखना शुरू करना है, right? So what you need to do is, if you do not know anything about the topic, do the pre-research। गंगाधर अभी मैंने समझाया, I have just explained this। If you do not know anything about the topic and the topic is given on the website, आपको कुछ नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, then do the pre-research। Keep your books, keep your pages aside on which you are going to write the essay, and first pre-research for 15 to 20 minutes। Gather all the facts, all the information, and then analyze it। उसको समझो, read it, analyze it, reread it until and unless you understand each and every word, okay? And then after you are sure that now I am prepared on this topic, एजुकेशन के ऊपर आया ना, लिख लूंगा, मैंने कर ली सर्च, मैंने अच्छे से फैक्ट्स वगैरह पढ़ लिए, दिमाग में एनालाइज भी कर लिया, हर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लिया, बोथ द गुड साइड एंड द बैड साइड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। नाउ क्लोज द लैपटॉप, क्लोज द बुक्स, कीप इट असाइड एंड स्टार्ट राइटिंग। This is how you have to develop your skills. This is how you have to sharpen your minds. Okay, students have this doubt, ma'am we do not know anything about the topic, in that case what we should do? This is the preparation journey. Here it's not compulsory that you have to know everything। ये आपकी preparation journey है यार, यहाँ पर compulsory नहीं है कि आपको सब कुछ पहले से आना चाहिए। किसी को नहीं आता पहले से, आप अनोखे नहीं हो। You are not unique that you are born with all the information and knowledge। No, everybody learns, develops that mindset, okay, and that happens with practice, with consistent reading। आप 4 दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये मत समझना कि बस आप महारथी हो गए, नहीं। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तब जाकर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो इन 4 days और 4 months और 5 months, डू नॉट थिंक दैट यू नो everything now। No, this is a journey which make you understand that we do not know anything। We develop our skills। हम पैदा नहीं होते हैं, ठीक है, स्किल्स के साथ हमें डेवलप करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया आपका एसे को कैसे डील करना है, प्रैक्टिस वाइज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई टोल्ड यू in a manner that how you have to practice the essay। Now coming on to the strategy of writing the essay। अब बात आती है, because in the normal answer we write in this format, introduction, body and conclusion। ये तो नॉर्मल आंसर होता है ना। जीएस पेपर का कोई भी आंसर लिखोगे, पहले 4 लाइंस इंट्रोडक्शन की होगी, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। सेम थिंग अप्लाइज इन द एसे। ऐसे कोई आसमान से उतरी हुई चीज थोड़ी है, ठीक है। ऐसे इज नॉट अ पैरानॉर्मल थिंग दैट हैज जस्ट लैंडेड ऑन अर्थ। नो, सेम अप्रोच हैज टू बी अप्लाइड इन एसे ऑल्सो। फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर एसे, इंट्रोडक्शन। व्हेन यू गिव अ स्पीच, यू डू नॉट जंप ऑन द टॉपिक डायरेक्टली। आपने देखा होगा बड़े बड़े वर्ड लीडर्स जब स्पीच देने आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं कूदते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट दे क्रिएट अ स्टोरी लाइन, दे इंट्रोड्यूस देयर टॉपिक। सिमिलरली यू हैव टू इंट्रोड्यूस, बट इन द जीएस पेपर्स, अदर जीएस पेपर्स, इंट्रोडक्शन इज ऑफ 3 to 4 lines only, because the word limit is very short।
ठीक है। बाकी के जो जीएस पेपर होते हैं इसमें इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का होता है क्योंकि वर्ड लिमिट छोटा होता है। यहाँ पर तो भाई 1200-1500 वर्ड लिमिट है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, इंट्रोडक्शन को कम से कम 10 से 15 लाइन का लिखना है। और 10 से 15 लाइन कैसे लिखेंगे, स्टार्ट विद अ कोट, कोट से स्टार्ट करो। एंड कोट आपका अपना बनाया भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट कोट्स with your own mind, अपने खुद के दिमाग से कोट बनाओ। इट शुड नॉट बी फ्रॉम अ बिग लीडर। इफ यू रिमेंबर द कोट ऑफ अ बिग लीडर यू कैन कोट इट। अगर आपको किसी बिग लीडर की स्पीच या आपको कोट याद है आप लिख सकते हो। बट इफ यू डू नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू could not remember the quote of any other big leader, then you can create your own quote। अपने खुद की लाइन्स क्रिएट करो, वो भी प्रैक्टिस से आएगा, दैट टू विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। ओके, सो क्रिएट योर ओन कोट। इट कुड बी फॉर होल सेंटेंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है एक लाइन का कोट होगा, आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। और यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी, आप स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th स्टोरी पालमपुर की थी या नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द क्लास 9th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी? देयर वाज अ स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, ओके, दैट इमेजिनरी विलेज पालमपुर। तो इस तरीके की स्टोरी आप बना सकते हो। एनसीईआरटी इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फ्रेम स्टोरीज, ठीक है। एनसीईआरटी हमें सिखाता है कि किसी चीज को समझाने से पहले स्टोरी के थ्रू कैसे इजी बनाया जाए उस चीज को। सो व्हेन यू आर राइटिंग ऐसे, डू नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड इन योर लैंग्वेज। द एग्जामिनर वॉन्ट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको लग रहा हो कि मैं हाई फाई लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स बना के लिखूंगा ऐसे को, वो कैप बहुत हाई फाई लिखूंगा तो इम्प्रेस हो जाएगा। ही विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ही विल नो दैट यू आर ट्राइंग टू शो ऑफ, वो नहीं करना। If you have a good vocabulary, very good. If you have a simple average vocabulary, don't worry. Examiner just wants a simple, writing, simple English, simple words. Okay, so over here 10 to 15 lines introduction, you can start with a quote, you can start with a story, you can start with both। पहले quote लिख दो फिर story डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के ऊपर है तो किसी लड़की कमला की स्टोरी बनाकर डाल दो कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको एजुकेट किया, कैसे उसने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, भाइयों से भी ज्यादा ऊपर पहुंची, ठीक है। सो यू कैन राइट एनी स्टोरी, हाउ अ गर्ल चाइल्ड वाज एजुकेटेड इन अ फैमिली नेम्ड कमला एंड शी सक्सीडेड इन हर एजुकेशन ऑल्सो एंड शी यू कैन से शी वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हर फैमिली, ठीक है। और कैसे एक लोअर क्लास से उसने अपनी फैमिली को अपर मिडिल क्लास के कैटेगरी में पहुंचा दिया, हाउ शी रेज्ड the category, the class of her family with education. This is how you can start your answer, ठीक है। Things are getting clearer or not? Same goes with women empowerment, okay? Same goes with the essay on wisdom। मान लो wisdom के ऊपर, समझ के ऊपर ऐसे आ गया, तब भी आप सेम स्टोरी यूज कर सकते हो कि wisdom of the parents of the girl child, ठीक है। उनकी वजह से लड़की पढ़ गई और आगे बढ़ गई, ठीक है। तो आप कोट से शुरू करो, स्टोरी से शुरू करो। सेकेंडली कम्स बॉडी ऑफ द एसे। नाउ यू कैन टारगेट द मेन टॉपिक ऑफ द एसे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के ऊपर है तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डाल सकते हो। एंड हियर यू कैन कंपेयर द एजुकेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, द गुरुकुल सिस्टम, द वेदास व्हेन दे वर टॉट, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द वेदास, व्हाट वाज द ऑरा ऑफ द विलेजेस इन विच ऑफ द गुरुकुल, ऑफ द प्लेस वेयर इन एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉडी ऑफ द आंसर में पहले मॉडर्न एजुकेशन की बात कर सकते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कोट कर सकते हो, फिर आप अपने करंट एजुकेशन को सिस्टम को मिडिवल से कंपेयर कर सकते हो, एंशिएंट सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप वुड्स डिस्पैच को कोट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कोट वुड्स डिस्पैच which was fundamental in spreading education in India during the modern Indian history during the period of 1854। तो 1854 के दौरान ये तभी हो पाएगा जब आपने पढ़ा अच्छे से है। All of these things that I'm quoting now, that you can also quote these things if you have studied well. History, polity, geography, these are very fundamental in your essay preparation. Essay को कैसे prepare करते हैं? किताबों के ऐसे रट के नहीं जाने। There are many books in the market wherein you can cram the essays, but they will not be helpful for all of you. वो आपको helpful नहीं होगा। कहाँ तक रटोगे 1000 शब्द? कहाँ तक रटोगे 1500 शब्द? कहाँ तक याद रहेंगे सारे facts? Okay? So what you can do is that when you study essay, make sure the rest of the subjects that you are preparing, GS paper 1 to GS paper 3, though you have strong hold over them. आप eco पढ़ रहे हो, geography पढ़ रहे हो, history पढ़ रहे हो, don't take it lightly. For example, this event that I am quoting in this essay is from modern Indian history. If you have studied spectrum very nicely, if you have studied NCERTs very nicely, consistently, you have revised them very well, then only you can quote these things and then only you can gain more marks in the essay.
आप इम्प्रेस कैसे कर सकते हो एग्जामिनर को? अपने लैंग्वेज से या अपने हाई फाई वोकैबुलरी वर्ड से नहीं, अपनी नॉलेज से. यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर विद योर नॉलेज एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रेस व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द अदर सब्जेक्ट्स. बिकॉज अगर कंटेंट है तभी आंसर निकलेगा, कंटेंट नहीं है तो गूगल भी कुछ नहीं कर पाएगा. ठीक है, समझ आ रही है बात? इतनी बात समझ आ रही है तो मुझे जल्दी से बताएं. एवरी सब्जेक्ट इज लिंक्ड विद एसे, वेदर इट्स ज्योग्राफी, वेदर इट्स हिस्ट्री, वेदर इट्स पॉलिटी, वेदर इट्स इंटरनल सिक्योरिटी और इको और एनवायरमेंट, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद एसे. सो अगर आपके बाकी के पेपर वेल प्रिपेयर्ड हैं तो एसे से डरने की जरूरत नहीं है, और बाकी के पेपर अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो एसे से सबसे ज्यादा डर लगता है, भागता है बच्चा एसे से, क्योंकि उसके बाकी कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड ही नहीं है. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे बताएं. देन इन द कंक्लूजन में आप क्या करोगे? दैट इन द कंक्लूजन 10 वर्ड लाइन्स का आपका कंक्लूजन बनेगा. योर फाइनल ओपिनियन. कंक्लूजन में हमेशा ये आता है कि आप क्या सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज ऑन विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट सोल्यूशन according to you is important or is relevant for that particular topic or issue. उस टॉपिक के लिए, उस इशू के लिए आप क्या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सोल्यूशन दोगे. सो यू आर राइटिंग द पेपर एज एन IAS ऑफिसर ऑलरेडी. ठीक है, दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, सो यू हैव टू सिट लाइक एन IAS ऑफिसर ओनली इन द एग्जाम हॉल. एंड एज एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर आपका क्या सोल्यूशन रहेगा उस इशू में. ठीक है, आप क्या अपनी तरफ से इनपुट डालोगे इस इशू में. अगर एजुकेशन के ऊपर है तो आप क्या चेंज लेकर आओगे. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट चेंज विल यू ब्रिंग इन द करंट एजुकेशन सिस्टम. इफ इट इज ऑन विजडम विच इज लैकिंग इन द इंडियन यूथ, मान लो ऐसे आता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऐसे इज ऑन द विजडम इज लैकिंग इन इंडियन यूथ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन यू विल राइट अबाउट विजडम. विजडम कितना जरूरी है, हाउ सिग्निफिकेंट विजडम इज, हाउ ग्रेट सक्सेस कैन बी अचीव्ड थ्रू गुड विजडम. ठीक है, तो यू विल quote the definition on wisdom. Then in the body of the answer you will give examples from our history. चाणक्य का example दे सकते हो. You can quote चाणक्य also. You can quote Jawaharlal Nehru also, B.R. Ambedkar also, Mahatma Gandhi also. You can quote Barack Obama also and Trump also. ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हो बराक ओबामा सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प, दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कोट विवेकानंदा जी. ही वॉज द एपिटोम ऑफ विजडम, पूरे के पूरे एपिटोम थे. ठीक है, वही विजडम की डेफिनेशन के इक्विवेलेंट थे विवेकानंदा जी. यू कैन कोट हिम, हिज वर्क, हिज वे ऑफ लिविंग, हिज माइंडसेट. Okay, then in the conclusion you will give solutions how wisdom currently is needed in the Indian youth. आज के जवान बच्चे जो हैं उनमें विजडम की कहाँ कमी है और कितना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अभी फरीदाबाद में केस हुआ था, यू ऑल नो अबाउट इट, राइट? यू हैव ऑल हर्ड अबाउट इट, द केस विच हैपेंड इन फरीदाबाद, राइट? देयर ऑल्सो विजडम वॉज लैकिंग. वहां पर भी विजडम की कमी थी, समझ की कमी थी, राइट? अग्रीड. सो यू कैन कोट दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो टू focus on the term that the examiner is asking about. Examiner wisdom की, youth की बात कर रहा है. आप ऐसे examples भी दे सकते हो जो न्यूज में आ रहे हैं. And then what solution you will provide in tackling with these issues where wisdom is lacking in the youth. ठीक है, you can say you can write that we can impart Vedic knowledge to the students or we can impart Advait knowledge to the students which can raise the level of awareness and hence it will raise the wisdom also. जैसे जैसे देखो लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है ना कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है हमें, क्योंकि रिएक्शन देंगे तो उस जाल में फंस जाएंगे. ये अवेयरनेस है और यही विजडम है. अवेयरनेस इज इक्वल टू विजडम. सो फोकस ऑन द टर्म अवेयरनेस. फॉर दिस यू कैन रीड अ वेरी गुड बुक. एक काफी अच्छी बुक है, यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज इकिगाई. ठीक है, एवरीबडी कैन सी दिस बुक इकिगाई. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, तो ये किताब जो है, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट अवेयरनेस. एंड नॉट जस्ट दिस बुक, देयर आर मेनी अदर बुक्स. काफी सारी बुक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन लाइब्रेरी. मैं अपने खुद की लाइब्रेरी से आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल बुक बाय ब्रायसन, ठीक है, और विशेस फुलफिल्ड, इनर इंजीनियरिंग, मिशेल ओबामा की बिकमिंग भी पढ़ सकते हो. देन यू कैन स्टडी द पावर ऑफ इंटेंशन बाय डॉक्टर वेन डायर. यू कैन स्टडी मेनी अदर बुक्स. बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो, right? So these are the books that will help you in
बूस्टिंग अप योर फिलोसॉफिकल नॉलेज। ऐसे में ना कुछ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स भी आते हैं, तो अगर आप करंट अफेयर से हटके फिलोसॉफिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आप ये किताबें पढ़ सकते हो जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, रोमांटिक नॉवेल्स तो ठीक है यार अपनी जगह, एक्शन वाली भी ठीक है, हॉरर वाली भी ठीक है, बट फिलोसॉफिकल नॉवेल जो है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को ना डेवलप करेंगी। एंड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टू गेट डेवलप। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? नाउ प्लीज लेट मी नो, यहां तक पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम कैन वी ड्रॉ फ्लो चार्ट्स इन द एसे? क्या हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं ऐसे में? एंड कैन वी ड्रॉ डायग्राम्स इन द ऐसे? क्या हम डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे में? राइट, सो द आंसर इज यस। ठीक है, आंसर है यस। आप जैसे अपने ऐसे को प्रेजेंटेबल बनाना चाहें बना सकते हो। यू कैन मेक योर ऐसे प्रेजेंटेबल इन द वे दैट यू वांट टू। ओके, बट इट शुड लुक फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल रखना चाहिए क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर की तरह आंसर लिख रहे हो। यू आर गोइंग टू आंसर लाइक एन आईएएस ऑफिसर, सो इट शुड लुक फॉर्मल। Now next question is, ma'am, can we use black ink also to highlight important words, or can we use red ink also, or purple or pink ink also? No, the answer is no. You have to write with the blue ink only. आपको सिर्फ ब्लू इंक से ही आंसर लिखना है, इसके अलावा आप कुछ यूज करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा पूरा आंसर। ठीक है, yes, dialogues also you can write and you can start with a story format of right, and in that you can write the dialogues. अगर आपको डायग्राम्स बनाने हैं like this, ठीक है, इसने ऐसे ऐसे बोला, यहाँ पर लिख दोगे इसने क्या बोला, देन फिर यहाँ पर लिख दोगे इसने क्या बोला। दिस काइंड ऑफ फिगर ऑल्सो यू कैन ड्रॉ, बट कीप इट इन अ बॉक्स, इसको एक बॉक्स में रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एंड द बॉक्स शुड नॉट बी, द फ्लो चार्ट और डायग्राम शुड नॉट बी मेड इन द सेंटर ऑफ द पेज। आप जो भी फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाओ पेज के सेंटर में नहीं होना चाहिए, पेज के साइड में होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ऑन द साइड ऑफ द पेज यू हैव टू ड्रॉ इट। इफ दिस मच इज क्लियर, ऐसे इस तरफ, ठीक है, बॉक्स के अंदर, एंड ऑल्सो ड्रॉ इट इन द बॉक्स, इट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, पेपर हॉचपॉच हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। डोंट बी मेसी इन योर आंसर शीट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देन हाउ टू हाईलाइट आवर वर्ड्स? अगर हम कोई इंक यूज, अलग कलर की इंक नहीं यूज कर सकते, हाईलाइटर यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज द हाईलाइटर और डिफरेंट इंक, हाउ टू हाईलाइट द वर्ड्स? डबल अंडरलाइन इट। ठीक है, आपने मान लो वर्ड लिखा है विमेन, विमेन्स राइट, ठीक है, तो आप इसको डबल अंडरलाइन कर लो, और यू कैन क्रिएट अ बॉक्स लाइक दिस ऑन दिस वर्ड, और यू कैन सिंगल अंडरलाइन इट, या एक अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। बट टू मच वर्ड्स शुड नॉट बी अंडरलाइंड। ठीक है, ऐसा नहीं एक लाइन में दो वर्ड से ज्यादा अंडरलाइन मत करना। इन वन लाइन डू नॉट अंडरलाइन मोर देन 2 वर्ड्स। ठीक है, 2 वर्ड से ज्यादा हाईलाइट मत करना, वरना इट बिकम वेरी मेसी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? दिस मच इज क्लियर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑफ द एसे पेपर ना, first decide, today I have read the newspaper editorials also, what topic should I pick up to write the essay on? मान लो आज के न्यूज़पेपर में इतने सारे आर्टिकल्स आए, मैं कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखूं? ठीक है, what topic should I pick up? So let's say you have picked up the topic on judicial activism. मान लो आपने जुडिशियल एक्टिविज्म पे आ गया आपका टॉपिक, ठीक है, editorial. Let's say the editorial was on judicial activism. Okay, judicial activism is a chapter in Indian polity, M. Lakshmikant also. Okay, so you have picked up this particular topic. You have read the essay. आपने you have read the editorial. आपने editorial पढ़ा, आपने बोला चलो आज थोड़ा एडवेंचर किया जाए, एक नए टॉपिक पे आज लिखते हैं कुछ। ठीक है, so what you have to do is after deciding the topic, we are not born with information. We have to gather information. हम इंफॉर्मेशन के साथ पैदा नहीं होते, हमें क्या करना होता है, गैदर करना होता है इंफॉर्मेशन। तो मान लो कि जुडिशियल एक्टिविज्म पे आप टॉपिक पे ऐसे लिखोगे, सो वी हैव पिक्ड अप द टॉपिक, नाउ यू विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, देन ओनली यू कैन राइट कंटेंट। तो गैदर करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप शुड नॉट बी ओपनिंग गूगल एंड सर्चिंग अबाउट इट। पहला स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि बस टॉपिक चूज कर ले, गूगल खोलो, सर्च करो, नहीं। First of all, whatever you know on that topic, write it down. It can be 2 lines also, 2 words also, or 1 page also. ठीक है, आपको बिना सर्च किए न्यूज़पेपर पढ़ के जो उस पे इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में, वो नोट डाउन कर लो एक पीस ऑफ पेपर पे। What are your ideas about this topic? Just note it down. आपने कोई स्टोरी पढ़ी है न्यूज़पेपर में, वो भी लिख दो। कोई न्यूज़ पढ़ी है, वो भी लिख दो। कोई पॉलिटिकल एग्जाम्पल है, वो भी लिख दो। आपको जितनी नॉलेज है इस टॉपिक पे, वो सब उड़ेल दो पेपर के ऊपर।
whatever knowledge you have on that topic, just write it down on a piece of paper. First thing that you have to do. It can be in point format also, number format also. ठीक है? Now coming on to the next step. अब दूसरा step क्या होगा? First of all, जब आपने नोट डाउन कर लिए हैं सारे, now you have what you have to do is you have to arrange them in sequence. इसमें मेरा इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा. In this, these points, 10 points, 2 points or 12 points, whatever you have written, see, arrange them sequence wise. Introduction will be the definition of judicial activism. तो मैंने मतलब लिखा है, ये इंट्रोडक्शन है. फिर इसमें से बॉडी ऑफ द ऐसे क्या होना चाहिए, मतलब मेन मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, वो बॉडी हो जाएगा. फिर मैंने अपने व्यूज व्यक्त किए हैं इस टॉपिक के ऊपर. देन आई हैव एक्सप्रेस्ड माय ओपिनियन, व्हाट आई थिंक अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, इज इट प्रेजेंट इन इंडिया और नॉट. दैट विल बी कंक्लूजन. नाउ यू थिंक योर एसे इज हाफ रेडी, मतलब एक पेज तो रेडी हो ही गया या आधा पेज रेडी हो गया, हाफ अ पेज इज रेडी. नाउ यू कैन ओपन अप द गूगल. अब आप क्या कर सकते हो, गूगल खोल सकते हो. नाउ यू कैन गैदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाय सर्चिंग व्हाट एग्जैक्टली इज जुडिशियल एक्टिविज्म. इज इट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. एंड if any Supreme Court judge or High Court judge has ever given any verdict on judicial activism, search it. जब आप टाइप करोगे ना वर्ड जुडिशियल एक्टिविज्म यूपीएससी, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने. यू जस्ट हैव टू टाइप द टॉपिक्स नेम एंड ऐड यूपीएससी. यूपीएससी ऐड कर दो सफिक्स में और टॉपिक का नाम डाल दो, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. ठीक है. देन यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म. अब आपको आर्टिकल्स पढ़ने. ओके, डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 30 मिनट्स. 30 मिनट से ज्यादा नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो अनलिमिटेड है. देयर इज इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन. यू कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग. सेम ही होती है, हर वेबसाइट पे सेम होती है. इफ यू आर स्टडिंग इनसाइट्स और अनअकैडमी, आर्टिकुलेट मैगजीन और क्लियर आईएएस, इन्फॉर्मेशन इज सेम. सो पिक एनी वन सोर्स, कोई एक वेबसाइट चुन लो, उस पे ही पढ़ो. रीड ऑन दैट वेबसाइट ओनली. ब्रेनस्टॉर्म इट, यू नो, एनालाइज इट, इंटरनलाइज इट कि भाई ये है क्या. पढ़ने के बाद समझो, दिमाग लगाओ, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो. ठीक है. एंड देन व्हेन योर नोट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस टॉपिक, क्लोज द सोर्सेज एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग फर्दर. आपने एक पेज तो पहले लिख लिया था या आधा पेज लिख लिया था, अब फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करो. नाउ दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन 2 एस्पेक्ट. जीएस पेपर 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म, and essay भी प्रिपेयर हो जाएगा. So your notes will also be prepared for GS paper 2's perspective on judicial activism, and your essay will also be prepared. समझ आ रही है बात. एंड इफ द टॉपिक इज इन एनी बुक ऑल्सो, अगर मान लो ये टॉपिक किसी चैप्टर में भी है, किसी बुक में भी है, तो उस चैप्टर को भी पढ़ो. फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल एक्टिविज्म इज इन द एम लक्ष्मीकांत बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो स्टडी दैट चैप्टर ऑल्सो बिफोर यू राइट द एसे. यू विल गैदर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस एंड यू विल एनालाइज इट एंड लर्न इट. इससे होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जल्दी खत्म हो रही होगी, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर अप होगा. दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन आंसर राइटिंग अगेन एंड अगेन विद रीडिंग. जो आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन करो और लिखो उस चैप्टर में से उस जो क्वेश्चन आया है. ठीक है. इतनी बात समझ आ रही है. नाउ प्लीज लेट मी नो इफ यू थिंक एसे इज टफ. नथिंग इज टफ. ठीक है. हमारा माइंडसेट चीजों को डराने में फोकस करता है. और माइंडसेट ना, इट्स अ मंकी माइंड एंड इट टेंड्स टू स्केयर अस. हमारा माइंड ना हमें इस तरीके से हमें बनाया, तैयार किया है कि हमें सबसे पहले डराता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन इज दैट वी गेट स्केयर्ड. ओ माय गॉड, सच अ लार्ज सिलेबस. ओ माय गॉड, सो मेनी वर्ड लिमिट. द वर्ड लिमिट इज ह्यूज. हाउ विल वी राइट? दैट इज द फॉल्ट ऑफ दिस माइंड. वी हैव टू ट्रेन इट. डू नॉट लेट योर माइंड ट्रेन यू. इट्स योर स्लेव. यू हैव टू ट्रेन इट. ठीक है. इतनी बात समझ आ गई सबको? तो जल्दी बताओ. If this much is clear, please let me know, then we'll move forward. Okay? Okay. Now, a very famous quote that I've read is the novelist Stephen King. He said, and he put it very beautifully, I write to find out what I think. It's such a deep word and such a beautiful quote. मैं लिखता हूं ये पता करने के लिए कि मैं सोचता क्या हूं. समझ आ रही है बात? इसका मीनिंग समझ आ रहा है या नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? आई राइट टू फाइंड आउट वॉट आई थिंक. मैं लिखता हूं ये पता करने के लिए कि मैं सोच क्या रहा हूं. एंड सी हाउ कैन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग. आप लिखना कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? डेली मेक अ जर्नल. डेली ना अपना एक जर्नल बनाओ. जर्नल मीन्स व्हेन यू गो टू स्लीप, कीप अ स्मॉल कॉपी बाय योर बेड साइड. बिफोर यू स्लीप राइट डाउन अबाउट योर डे. सोने से पहले लिखो आज मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू,
एंड देन व्हाट वाज आई थिंकिंग द होल डे, पूरे दिन में क्या सोच रहा था. इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, बिकॉज वेन यू विल राइट ना, यू विल बी शॉक्ड. जब आप लिखोगे ना कि हाँ आज मैंने क्या सोचा पूरे दिन, आप खुद शॉक हो जाओगे. मैं इतना नेगेटिव भी सोच रहा था, या मैं इतना पॉजिटिव हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं. अगर आप नेगेटिव ज्यादा है आपके जर्नल में, इसका मतलब आपको पता है कि काम कहाँ करना है. इफ यू थिंक दैट इन योर जर्नल नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव थिंकिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, देन यू विल हैव एन अवेयरनेस वेयर आई नीड टू वर्क नाउ. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई. दिस इज हाउ योर आंसर राइटिंग एबिलिटीज विल स्टार्ट टू बूम अप. इस तरीके से आप अपने आप को ट्रेन करोगे. यू डोंट रिक्वायर एनीबडी एल्स टू ट्रेन यू इन राइटिंग आंसर्स. ट्रस्ट मी, if the other person is giving you guarantees na that I can make you a master in answer writing, I can guarantee you that you can clear mains, this and that person is making a fool of you. अगर कोई बोलता ना मैं गारंटी देता हूं कि तुम मास्टर हो जाओगे आंसर राइटिंग में, मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, वो आपको पागल बना रहा है. ठीक है. बट अगर कोई बोले कि मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूं कि कैसे लिखना शुरू कर सकते हो, तो उस तरीके को फॉलो करो. ठीक है. तरीका यही है. लिखना शुरू कैसे कर सकते हो, लिखो पहले. ठीक है. हाउ कैन यू बी एन एक्सपर्ट इन राइटिंग, राइट फर्स्ट. ठीक है. सब कुछ हमारा करने से होता है. इफ यू थिंक अबाउट स्विमिंग, यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग जस्ट बाय रीडिंग अबाउट स्विमिंग. तैरना आप ऐसे नहीं सीख सकते कि किताब पढ़ ली तैरने के ऊपर और सीख गए. नहीं, यू हैव टू जंप इन द वाटर टू लर्न हाउ टू स्विम. Right? Similarly, when you want to learn how to write, you have to jump into writing. Then only you can know how to write. तो सबसे पहले जर्नल राइटिंग शुरू करो. आप जो भी फील करते हो पूरे दिन में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको लिखो. एक्सप्रेस करो खुद को इन द लैंग्वेज, in the same language that you are giving the exam in. For example, you are giving exam in Hindi, write in Hindi. If you are giving the exam in English, write the journal in English. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई या नहीं? नाउ लेट अस सी व्हाट यूपीएससी इज सेइंग अबाउट एसए पेपर. यूपीएससी क्या बोल रहा है एसए के पेपर के बारे में? यूपीएससी इज वेरी केयरफुली मेंशन्ड इट ऑन इट्स वेबसाइट. Candidates may be required to write essays on multiple topics. That means UPSC said on different topics we will ask them to write essays. They will be expected, their expectation, UPSC का क्या expectation है? To keep closely to the subject of the essay. That means if the essay is on wisdom, do not include terrorism in the essay. Do not include women empowerment in the essay. Do not include economy in the essay. No. If it is a philosophical essay, stick to the topic of the essay. उस सब्जेक्ट पे टिके रहो जिस सब्जेक्ट पे ऐसे पूछा है. यानी कि डोंट बीट अबाउट द बुश. इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने हैं. जो टॉपिक पूछा है उसी के ऊपर लिखना है. ठीक है. To arrange their ideas in orderly fashion. That means introduction, body, conclusion. You can draw flowcharts also. Your presentation should be official and formal. आपका जो presentation होगा ना आंसर राइटिंग का, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह होगा. Sequence wise you have to write the essay. If you are writing in point format, ठीक है, आपके पॉइंट फॉर्मेट 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए. ये नहीं कि 1 देन ए आ गया फिर सी आ गया या डॉट्स बना दिए. नहीं, एक ऑर्डरली फैशन मेंटेन करना है. एंड टू राइट कंसाइसली. दैट मीन्स वट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट. टू द पॉइंट होना चाहिए आपका ऐसे. ये नहीं कि अभी आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, 2 लाइन्स के बाद कोई नया टॉपिक घुसा दिया. नहीं, write very concisely, to the point, what is asked, stick around the sub topic only and do not beat around the bush, and write in a very effective and exact expression. यानी कि आपको इधर उधर टिल्ट नहीं करने इमोशनली. अगर आप किसी टॉपिक का पॉजिटिव बता रहे हो तो पॉजिटिव पूरा कंप्लीट करने के बाद ही उसका दूसरा एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट मेंशन करोगे. ये नहीं कि पहले पॉजिटिव बनाइए, बताइए एक लाइन, दूसरी लाइन में आपने क्रिटिसाइज कर दिया. नहीं. ठीक है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ टॉपिक, डू नॉट मेंशन द क्रिटिसिज्म ऑन द इन द सेकंड लाइन. First complete the positive aspect of the topic, then only start with the criticism. Okay, your expression should be, your mind should be very clear when you are writing the essay. अभी कुछ कहीं कुछ ये नहीं होना चाहिए. ठीक है. इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो जल्दी से बताओ. ठीक है. Now from where to prepare the essay, कहाँ से पढ़ें? There first of all editorial section of the newspaper. ये तो आपको पढ़ना ही है. ये मिस कर दिया ना एक दिन तो समझ लेना आपने एक ऐसे गवा दिया. If you miss reading the editorial for even a single day, just consider that one essay you have already lost.
बिकॉज एक एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये आपकी कंसिस्टेंसी आपको अचीवर बनाएगी। एवरी अचीवर हैज वन सीक्रेट, किसी भी अचीवर के पास जाओ, ही हैज वन सीक्रेट, दैट इज कंसिस्टेंसी। किसी से पूछो, एनी इंटरव्यू दैट यू स्टडी और रीड और हियर अबाउट, द टॉपर विल ओनली टेल यू दैट आई वॉज कंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट था। बाकी सारी चीजें तो पढ़ाई लिखाई तो होती है, करनी ही है, एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना है, बट एक चीज जो मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी है, ठीक है। सेकेंडली, यू कैन रीड नॉन फिक्शन ऑल्सो, आप कोई भी फिलोसफिकल बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि ये हो गई इकिगाई, ठीक है, दिस बुक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप ये भी पढ़ सकते हो, इट्स इंटरनेशनल बेस्ट सेलर ऑल्सो, तो इकिगाई आप रेफर कर सकते हो। यू कैन रीड बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा, बिकमिंग पढ़ सकते हो, सैपियंस पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी सैपियंस ऑल्सो, यू कैन स्टडी इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु, ठीक है, वो आपके इनर माइंड को मास्टर कैसे करना है वो सिखाती है किताब। यू कैन स्टडी द बुक्स बाय डॉक्टर वेन डायर, डॉक्टर वेन डायर की जो किताबें हैं दे आर वंडरफुल, पावर ऑफ इंटेंशन, wishes fulfilled, these are the books that are wonderful. Dr. Wayne Dyer is a very prolific writer, he is not anymore now, अभी वो जिंदा नहीं है, बट उनकी जितनी भी किताबें हैं बहुत वंडरफुल हैं। ओके, डॉक्टर ब्रेन वाइज की किताब पढ़ सकते हो आप, ये सारी जो किताबें हैं ये आपको हेल्प करेगी आपके दिमाग को खोलने में। हमारा दिमाग ना बहुत लिमिटेड सोच रखता है एक एज तक, और वो सोच खुलती तभी है जब हम नई नई राइटिंग्स, नए नए ओपिनियंस को पढ़ते हैं। व्हेन वी लुक इनटू पॉजिटिव ओपिनियंस, एनालिटिकल ओपिनियंस ना, आवर बुक्स दे ओपन अप ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, दैट इज अ मस्ट, बट साइड में आप ये किताबें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियर? ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 2019 का एसे पेपर, ठीक है। सो द एसेज वर, राइट 2 एसेज, आपको ना 2 ही ऐसे लिखने हैं, ये मत सोचना 4-5 ऐसे लिखवाएंगे, नहीं, दे विल आस्क यू टू राइट 2 एसेज ओनली, ईच ऐसे विल बी ऑफ 125 मार्क्स, तो 2 ऐसे लिखने हैं, बट दे विल गिव यू ऑप्शंस, वो आपको ऑप्शन देंगे। सो देयर विल बी 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, दिस इज सेक्शन बी। फ्रॉम सेक्शन ए यू हैव टू पिक अप 1 टॉपिक एंड फ्रॉम सेक्शन बी 1 टॉपिक, ठीक है, दोनों में से एक एक टॉपिक उठाना है। Section A is philosophical in nature and section B is current affairs oriented. तो that is why I was saying that read the editorials daily. Section A तो philosophical होता है और section B होता है current affairs oriented. So from section A the options were in 2019 and the word limit is 1000 to 1200. कोई बच्चा अभी यहाँ 1500 कह रहा था, बिल्कुल गलत, 1000 से 1200 की वर्ड लिमिट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे इज विजडम फाइंड्स ट्रूथ, यानी कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। इफ यू हैव द विजडम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द ट्रूथ, नोबडी कैन चीट यू, नोबडी कैन मेक अ फूल ऑफ यू, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी नो, इजी टॉपिक है ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे लिखना, ठीक है, तो ये इजी लग रहा है या नहीं? और जब आप लिखना शुरू करोगे ना, फ्लो बनता चला जाएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग ना, ट्रस्ट मी, flow will be seen in your answers, in your writing. Second is values are not what humanity is but what humanity ought to be. Values humanity नहीं होते हैं, यानी कि मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए, ठीक है। So values are not humanity but values are what humanity should be. ह्यूमैनिटीज को कैसा होना चाहिए, वो वैल्यूज होती हैं, वो आपके मूल्य होते हैं जीवन के, ठीक है। अगेन अ वेरी फिलोसॉफिकल ऐसे, वेरी वंडरफुल ऐसे, आप ना बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है। इफ यू आर एन एविड रीडर, और देखो कोई बॉर्न रीडर नहीं होता, आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। आप लाइफ में कितनी हैबिट्स डेवलप करते हो ना, है ना, तो यही रीडिंग की हैबिट भी डेवलप करनी है। सेकेंड ऐसे, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट यू कैन राइट वेरी वंडरफुली ऑन दिस टॉपिक? आप में से कितने बच्चों को लगता है, इंटरनली पूछो अपने आप से कि आप ये इस टॉपिक पे लिख सकते हो, शुरू तो कर सकते हो। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि व्हाट इज गुड फॉर यू मे नॉट बी गुड फॉर द सोसाइटी। जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं है वो सोसाइटी के लिए भी सही हो। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट टॉपिक, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस। इस पे तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इज इट इजी और नॉट? यानी कि करेज किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि कोई रिजल्ट आता है, मान लो वो रिजल्ट अच्छा नहीं था, तो करेज रखो कि उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। एंड डेडिकेशन दैट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई विल एस दिस एग्जाम, नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं एस करूंगा। डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ूंगा मैं, इस बार फेल नहीं होऊंगा। तो करेज एंड डेडिकेशन आर द कीज टू सक्सेस,
इसमें तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो, मार्टिन लूथर किंग का, महात्मा गांधी जी का, BR अम्बेडकर जी का, कर सकते हो या नहीं, चाणक्य का, चंद्रगुप्त मौर्य, यू कैन कोट दीज एग्जाम्पल्स, दीज लीडर्स, दे हैड द करेज एंड द डेडिकेशन, दैट इज व्हाई वी स्टडी अबाउट देम, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यू कैन कोट द एग्जाम्पल ऑफ द IAS टॉपर्स ऑल्सो, जुनैद अहमद खान। समझे मेरी बात? इजी है कि नहीं? जल्दी से बताएं, इसमें क्या टफ लग रहा है आपको? इजी है ना? yes or no? Now coming on to the section B. Now it is current affair related. तो इसके लिए ना अगर आप सेक्शन A जो है वो फिर भी आपके लिए बहुत इजी है, सेक्शन B इजी तब होगा जब कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर रीडिंग होगी। Section B will be easy when there is consistent reading of the newspaper, only then. Trust me, if a particular institute is saying now that we can master you, make you a master in essay, डोंट रन आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपको आके बोलता है ना ऐसे तो मैं ऐसे निकलवा दूंगा तुम्हारा, इतना इजी कर दूंगा, तुम टॉप करोगे, मेरी क्लासेस ले लो एक बार, ठीक है, तो वो पागल बनाने वाली बात है, क्योंकि यहाँ आपकी मेहनत चाहिए, किसी और इंडिविजुअल की नहीं, रटा रटाया ज्ञान नहीं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब मास्टर होगा, ठीक है। सो हियर क्वेश्चंस आर, साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज, ठीक है। सो मेनी कल्चरल आइडेंटिटी, सो मेनी कल्चर्स, सो मेनी आइडेंटिटीज, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड और सीन इन साउथ एशियन सोसाइटी, साउथ एशियन नेशंस, ओके। सो यू कैन मेंशन दैट कि हम स्टेट के अराउंड हमारी आइडेंटिटी नहीं बनी हुई है सोसाइटी की, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन के आसपास बनी हुई है हमारी आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल भूटान, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर देखो, बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। अभी अर्नब गोस्वामी की न्यूज कितने बच्चों ने पढ़ी है? हाउ मेनी ऑफ यू सॉ अर्नब गोस्वामीज न्यूज? सबने देखा ना, ठीक है। तो जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, सबने पढ़ा ना क्या हो रहा है आजकल हमारी कंट्री में। सो बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट, येस और नो? इंडियन डेमोक्रेसी में अगर बायस्ड मीडिया है, पार्शियल मीडिया है, वो सबसे बड़ा खतरा है या नहीं? अग्रीड और नॉट? सुशांत सिंह राजपूत सर का केस देखा था सबने, क्या हो रहा था उसमें, ठीक है, और अब क्या हो रहा है उसमें, कहां से कहां पहुंच गई बात, ठीक है। सो दीज आर द केसेस दैट यू कैन मेंशन, यू कैन गिव एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है, आप यहां पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इतनी बात समझ आ गई? सो दीज आर द काइंड ऑफ, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, ये भी जर्नलिज्म से रिलेटेड न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से ही लिया गया है। द नेक्स्ट, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब बच्चे पढ़ रहे हैं AI के बारे में न्यूज़पेपर में, एवरीबडी इज स्टडिंग अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो, डिजिटाइजेशन ऑफ एवरी फील्ड इन आवर कंट्री। यस संदीप, आप रिपोर्ट्स भी, इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हो। करंट अफेयर का ऐसे है ना, तो फैक्ट्स मेंशन करोगे, स्टैट्स मेंशन करोगे तो बोनस मार्क्स मिलेंगे। इफ यू मेंशन फैक्ट्स एंड स्टैट्स इन द करंट अफेयर रिलेटेड ऐसे, यू विल गेट बोनस मार्क्स ऑल्सो, ठीक है, दैट विल बी वेरी गुड। इसलिए कहते हैं इंडेक्स याद रखो, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ऐसे और पेपर्स के लिए भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे आ गया, ठीक है। देन आपका हेल्थ सिस्टम एंड एजुकेशन के ऊपर ऐसे आ गया, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। यस, नाउ यू कैन राइट essay on this topic if you have studied about national education policy, state of health and COVID-19 चल रहा है इस वक्त, हम कितने प्रिपेयर्ड थे आप सभी को पता है। हाउ प्रिपेयर्ड वी वर टू हैंडल सच अ पैंडेमिक, यू ऑल नो अबाउट इट। थर्ड वेव ऑफ वायरस आ रहा है कंट्री में, it is being said that now the third wave of virus is being can be witnessed, and Ahmedabad has already launched the lockdown from 9 PM to night। आज रात 9 बजे से अहमदाबाद में लॉकडाउन चालू हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट is saying we cannot afford to start lockdown again, our economy will get destroyed, okay। So how prepared we are to handle the primary healthcare system or in the area of primary healthcare, all these facts and stats you can mention in this essay। अभी बात क्लियर हो रही है? किस किस को अभी भी ऐसे टफ लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड ऐसे टफ? अभी भी ऐसे किसी को टफ लग रहा है तो बताओ जल्दी से। इजी है, बट कैसे इजी बनेगा? प्रैक्टिस से। हाउ इट विल बिकम इजी? बाय प्रैक्टिस ओनली। डर के कुछ नहीं होगा, याद रखना। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग, आई टोल्ड यू, स्टार्ट राइटिंग योर जर्नल, खुद की जर्नल लिखना शुरू करो। On every day when you read the newspaper on any one topic, start writing your opinions। किसी भी एक टॉपिक पे ओपिनियंस लिखने शुरू करो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन फ्रॉम साहिल,
Ma'am, if we are from English medium, is it compulsory for us to write essay in English? Yes. If you have chosen the medium as English while filling the form, जब फॉर्म भरते हैं ना तो वो ऑप्शन आता है, the option comes, which medium will you choose to write answers in? English, हिंदी और any other regional language. अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो फिर आंसर सारे इंग्लिश में लिखोगे, सिर्फ ऐसे नहीं, सारे आंसर्स, all the answers you will write in English. Okay? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आता है, मैम ऐसे राइटिंग में इंग्लिश का लेवल कैसा होना चाहिए, बेसिक लेवल या कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा? सिंपल, बी सिंपल, ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स वहीं कट हो जाएंगे, शो ऑफ इज नॉट अलाउड, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट राइट हाई फाई वर्ड्स और यूज हाई फाई वोकैबुलरी लाइक शशि थरूर सर, ओके? नॉर्मल रहो, सिंपल रहो अपने अप्रोच में, जैसा आप अपने ओपिनियंस को व्यक्त करते हो वैसे व्यक्त करो एंड दैट विल बी ओके। ओके, इतनी बात समझ आ गई सबको? एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स? तो आई गेस नाउ देर आर नो डाउट्स, आई गेस किसी के कोई डाउट्स नहीं है। तो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन, इसी नोट पे हम सेशन को रैप अप कर रहे हैं। नाउ टुमारो ऑल्सो आई हैव अ क्लास विद ऑल ऑफ यू, कल भी आप सभी के साथ एक क्लास है हमारी सुबह 9 से 10 बजे, एंड दिस क्लास विल बी ऑन एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्विंग देम ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री के 2012 क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, ठीक है? सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्लास, दैट विल ऑल्सो बी अ स्पेशल क्लास, फ्री क्लास होगी वो भी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उस क्लास का, आप इनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स नेम इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज, ठीक है? तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फॉर द क्लास नोटिफिकेशन। Thank you everyone for participating in the class and reviewing it very nicely. Thank you.